ਹੈਲੋ ਵਿਊਵਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ। ਇਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਟਾਈਪਸ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰੇਂਜ ਆਫ ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ATM, ਦੂਸਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਤੀਸਰਾ ਫੋਨ ਟੈਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਚੌਥਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਪੰਜਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਛੇਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹਨੂੰ EFT ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਠਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸੱਤਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵਾਂ ਈ ਚੈਕਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈ ਚੈਕਸ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਈ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ATM ਹੈ, ATM ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਮਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ATM ਤੋਂ ਅਸੀਂ 24 ਆਵਰ ਅ ਡੇ 7 ਡੇਜ਼ ਅ ਵੀਕ ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ATM ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ATM ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ATM ਪਲੱਸ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ATM ਕਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ATM ਕਾਰਡਸ ਦੋਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਨੇ। ATM ਕਮ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਇਹ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ATM ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ। ATM ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ATM ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ATM ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਿਡਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ATM ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ATM ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ATM ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਰਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ATM ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਇੰਸਰਟ ਕਰਦੇ ਜੇ। ATM ਕਾਰਡ ਇੰਸਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ 2-4 ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਦਾ। 4 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਪਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਿਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ATM ਕਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 24 ਆਵਰ ਅ ਡੇ 7 ਡੇਜ਼ ਅ ਵੀਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਾਊਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰਾਅਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਪਿਨ ਚੇਂਜ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ ਕੈਸ਼, ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ, ਮੇਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿਦ ਬੈਂਕ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਫੰਡਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅਕਾਊਂਟਸ ਲਿੰਕ ਟੂ ਦਾ ਕਾਰਡ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ATM ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਫੀ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਕਮ ATM ਕਾਰਡ ਯਾਨੀ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ATM ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ 75,000 ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 75,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵਿਡਰਾਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਮਿਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਡਰਾਅਲ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ 30,000 ਵਿਡਰਾਅਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ, 30,000 35,000 ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ 0 ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਚੇਜ਼ ਨਾਓ ਪੇ ਲੇਟਰ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫ਼ੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਟੈਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ। फ़ोन बैंकिंग या टैली बैंकिंग का मतलब है कि जो असी फोन करके या टैलीफोन करके जो बैंक दी फैसिलिटीज़ जड़ियाँ लै सकते हैं, बैंक की जी सर्विसिज जड़ियाँ वो लै सकते हैं बाय टॉकिंग ओनली। हूँ जिवें इत्थे लिखा बाय टॉकिंग ओनली कि सिर्फ फोन पर गल करके जो सर्विसिज जड़ियाँ असी बैंक तो लै सकते हैं। जिवें कि बैंक में काफ़ी सारे जो कॉल जोड़े वर्किंग आवर के दौरान जोड़े आते हैं जो, हाँ सिर्फ ये जरूर है ये कि सिर्फ तुसीं वर्किंग आवर के जो है बैंक को फोन कर सकते हो, क्योंकि वर्किंग आवर के दौरान जोड़ा है वो बैंक तो सर्विस प्रोवाइड करेगा। वो बाद तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी लेकिन कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं होगी जेकर तुसीं वर्किंग आवर तो पहला या वर्किंग आवर तो बाद जो फोन करते हो। ये की होंदा है कि एक ऑटोमेटेड वॉइस रिकॉर्डर होंदा जिहड़ा तुहाडी वॉइस नूं रिकॉर्ड भी करता तो तुहानूं रिस्पॉन्ड भी करता। तो जिवें भी हो सकता है तुहाडी जिहड़ी जो भी तुसीं ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना चाहुंदे हो वो ट्रांजैक्शन जिहड़ी है तुसीं कंप्लीट कर सकते हो। जिवें इहदीयां कुछ एडवांटेज ने, प्रोसैसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को प्रोसैस करना, एक्सैस टू रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन किसी इंफॉर्मेशन को एक्सैस करना, या फिर सिक्योरिटी अपने बता सकते हो फोन करके। नैक्सट किहड़ियां फैसिलिटीज़ ने जिहड़ियां तुसीं फोन बैंकिंग या टैली बैंकिंग के जरिए लै सकते हो। अकाउंट डिटेल का पूरी इंफॉर्मेशन लैनी, अकाउंट बैलेंस कितना है, चैकबुक या अकाउंट स्टेटमेंट जी रिक्वेस्ट करनी उन्होंने कढ़वानी, स्टॉप पेमेंट सर्विस कोई भी पेमेंट तुसीं लगाई हुई है उन्होंने स्टॉप करना। जिवें कोई आप बिल वगैरह कोई पे करते हैं, कोई ऑटो डेबिट की फैसिलिटी आप ली होंगी है कि जो अकाउंट के विचों अपने आप ही डिडक्ट हो जाती है, उन्होंने उस चीज़ को रोकना। ओपनिंग एंड एफ डी जी ओपन करना, रिपोर्टिंग लॉस्ट ATM कार्ड जो कितने गुम हो जाता उसकी रिपोर्ट देनी, डिमांड ड्राफ्ट, फंड ट्रांसफर, टॉक टू अ फोन बैंकर, बिल पेमेंट्स, चैक स्टेटस इंक्वायरीज, ये सारी चीज़ां जो तुसीं फोन बैंकिंग टैली बैंकिंग के जरिए लै सकते हो। चौथी ये फैसिलिटी आ जाती है मोबाइल बैंकिंग की। मोबाइल बैंकिंग के जरिए की है कि मोबाइल बैंकिंग कस्टमर जोड़ा बैंक का वो अपने अकाउंट्स नूं मोबाइल फोन के उपर एक्सैस कर सकता है। ये सेम उहदे वर्गा है जिवें असीं इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, सेम उहदे वर्गा सॉफ्टवेयर जी बैंक प्रोवाइड कर दी है सानूं। वो सॉफ्टवेयर के जरिए जो काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ जो सानूं मिल जाती, जिवें बैलेंस इंक्वायरी करनी, फिक्सड डिपॉजिट जो FD क्रिएट करनी या व्यू करनी, पेमेंट्स नूं रोकना जो असीं टैली बैंकिंग दे विच या फोन बैंकिंग दे विच कर सकते हैं, वो सारियां फैसिलिटीज़ इहदे विच भी मौजूद ने। हुण इहदे विच कई सारियां सर्विसिज जिहड़ियां ऑफर कीतियां जांदियां वो सर्विसिज ने बैलेंस इंक्वायरी, जिवें बैलेंस इंक्वायरी करनी सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट की। सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट का मैं डिफरेंस दसदा की है। सेविंग अकाउंट जोड़े आम बैंक के जोड़े भी कस्टमर ने वो आम सेविंग अकाउंट जो खुलवाते हैं कि जिहदे असीं पैसा जो सेव करते हैं, लेकिन करंट अकाउंट की लोड़ उन्होंने पैंदी है जिन्हों ने रैगूलर ट्रांजैक्शनस करनी है, जिन्होंने रैगूलर पैसा कढ़वाना है, रैगूलर पैसा जमा करना है, क्योंकि उन्होंने रैगूलरली जो पैसा विड्रॉ करने की लोड़ पैंदी है, डिपॉजिट करने की लोड़ पैंदी है। इस करके उहदे उपर उन्होंने कुछ एक्सट्रा खर्चा ना पवे, इस करके वो करंट अकाउंट जो खुलवाते हैं। करंट अकाउंट के उपर जो इंटरस्ट जो नहीं चार्ज किया जाता, नहीं मिलता, लेकिन सेविंग अकाउंट के उपर तुहानूं जो इंटरस्ट जो प्रोवाइड किया जाता है। प्लेसिंग अ स्टॉप पेमेंट ऑन अ चैक, जिवें ये भी फैसिलिटी जी प्रोवाइड की जाती है। चैकिंग लास्ट 3 to 5 ट्रांजैक्शन, 3 to 5 ट्रांजैक्शन चैक करनी है। रिक्वेस्ट ऑन अकाउंट स्टेटमेंट, रिक्वेस्टिंग चैकबुक रिक्वेस्ट करनी है, तुसीं चैकबुक लैनी है तो तुसीं इहदी फैसिलिटी के जरिए लै सकते हो मोबाइल बैंकिंग के जरिए। चैक स्टेटस इंक्वायरी, बिल पेमेंट्स, FD इंक्वायरी, यानी ये सारी फैसिलिटी जिहड़ियां तुसीं मोबाइल बैंकिंग के जरिए लै सकते हो। नैक्सट है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग सब तो सिंपल सर्विस है, सब तो वधिया सर्विस है हर एक बैंक की। जिहड़ा बैंक इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है वो बैंक अज की डेट के सब तो ज़्यादा प्रॉफिट के जोड़ा चल रहा है। जिवें कुछ एग्जाम्पल मैं दूँगा तुहानूं, जिवें HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, जोड़े प्राइवेट बैंक ने खास करके वो बैंक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ जी अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तकरीबन हर एक अकाउंट डिटेल जी वो इन्हां इंटरनेट बैंकिंग के जरिए जो है वो तुहानूं घर बैठे ही जो प्रोवाइड करते हैं। ये वास्ते की होंदा है कि हर एक बैंक जो है वो तुहानूं एक यूज़र नेम तो पासवर्ड जो प्रोवाइड करता है तुहानूं ऑथेंटिकेट करने के लिए कि ये बंदा वही है जिन्हें वो अकाउंट जो खोलिया।
काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जी अकाउंट के नाल रिलेटेड तुहानूं फिल करनी पैंदी है। उहदे बाद तुसीं ये बैंकिंग सर्विस जी किते भी तो किसी भी टाइम जी यूज़ कर सकते हो, जो फैसिलिटी जी इंटरनेट बैंकिंग के जरिए प्रोवाइड करते हैं। जिमें किहड़ियां सर्विसिज ने वो इत्थे देख सकते हैं आप। अकाउंट बैलेंस चैक करना, स्टेटमेंट, समरी, स्टेटस ऑफ चैक, फंड ट्रांसफर, ओपनिंग न्यू फिक्स डिपॉजिट, FD कोई क्रिएट करनी, फिक्स डिपॉजिट की समरी देखनी, चैकबुक की रिक्वेस्ट पानी, कोई पेमेंट जी स्टॉप करनी कोई, या ऑनलाइन बिल पेमेंट की फैसिलिटी, ये सारिया फैसिलिटी जी असीं इतों लै सकते हैं। नैक्सट है इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के विच की है कि इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के जरिए जोड़ा है असी कोई भी जोड़ा फंड जोड़ा वो ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को भी असी पैसा जोड़ा ट्रांसफर कर सकते हैं इलैक्ट्रॉनिकली, जिन्हों इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किया जाता है। वो दो पार्टीज़ जिहड़ियां इहदे विच जरूरी आ जिन्हां ने फंड ट्रांसफर करना है, एक वो पार्टी जिन्हां ने पे करना है, एक वो पार्टी जिन्हां ने रिसीव करना है। सो ये दोनों पार्टियां जिहड़ियां है ये डिफरेंट कंट्रीज़ तो हो सकदियां, डिफरेंट स्टेट्स तो हो सकदियां, डिफरेंट लोकैलिटीज़ तो हो सकदियां। इन्हां पार्टीज़ नूं जेकर इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का यूज़ लेना है या यूज़ करना है तो इन्हां दा जो भी डेटा जिहड़ा है शेयर हुंदा है इंटरनेट के उपर, उन्होंने शेयर करने के लिए जिहड़ा है इलैक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के जरिए जिहड़ा है उन्हां दा डेटा जिहड़ा एक दूसरे नूं इंटरचेंज किया जाता है, जिहड़ियां भी पार्टीज़ जिहड़ियां इस ट्रांजैक्शन दे विच इनवॉल्व होंदियां। सो इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की है कि जदों एक परसन किसी दूसरे परसन को जो इलैक्ट्रॉनिकली कोई भी फंड की पेमेंट करता है वो इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो यूज़ होंगे हैं। ये कई सारिया एडवांटेज ने, जिवें ट्रांसफर करना फंड में, वैरायटी ऑफ सर्विस जी प्रोवाइड करता है, नो नीड टू की इन डेटा अगेन एंड अगेन, कोई भी की फिल करने की लोड़ नहीं है, प्रोसैसिंग कॉस्ट लैस है यदी, तो एरर्स जी घट आउंदियां, बहुत घट टाइम जोड़ा है वो सानू ये स्पेंड करना पैंदा है, जॉब सैटिस्फैक्शन ज़्यादा है, ये कुछ होर ने सेम इदा दी। नैक्सट ये पॉइंट आ जाता है सतवां जी फैसिलिटी जी ई बैंकिंग प्रोवाइड करती है वो है इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस। इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस जी है इसका मतलब यह है कि जो तुहाडी कंपनी जी है कोई भी बिल जो रिसीव करती है, उस बिल को रिसीव करने तो बाद जेकर उस बिल को ऑथोराइज करना चाहती है, क्लीयर करवाना चाहती है, तो इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस की फैसिलिटी जी है लैके जो बिल जोड़ा है वो डैबिट करवाया जा सकता है कि जो बैंक जोड़ा तुहाडे अकाउंट के विचों जो पैसा डैबिट कर देंदी है तो वो उस कंपनी को पे कर देंदी है, जी कंपनी ने जोड़ा वो बिल जोड़ा इशू किया। सो एक क्लीयरिंग हाउसिस की फैसिलिटी जी खास करके उन्होंने वास्ते जोड़े ई बिल जोड़ा है, ई बिल जोड़े इशू करते हैं कोई भी पेमेंट वास्ते, जिवें सप्लायर हो सकता है या कोई होर थर्ड पार्टी हो सकती है। लास्ट ये आ जाता है ई चैक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है इस करके मैं थोड़ा जल्दी कर रहा समझाने लिए। ई चैक का मतलब है कि जिमें असी नॉर्मल चैक जो यूज़ करते हैं, ये की फैसिलिटी है कि असी ई चैक यूज़ करते हैं इंटरनेट के जरिए, जो इलैक्ट्रॉनिक चैक जिन्होंने कहा जाता है। इलैक्ट्रॉनिक चैक के उपर की है कि जोड़े सिग्नेचर होंगे वो डिजिटल सिग्नेचर होंगे, डिजिटल सिग्नेचर उन्होंने इशू होंगे हैं जोड़े कि बैंक की फैसिलिटी जी लैन के लिए ऑथोराइज होंगे हैं, या जिन्हों की ऑथेंटिकेशन जी है उस डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू जी हो जाती है कि ये सेम परसन है जिहदे नाम से अकाउंट है जोड़ा फंड ट्रांसफर कर रहा है। इस करके ई चैक जोड़े आ ये बहुत अजकल फेमस हो चुकी है काफ़ी बड़िया कंपनियों के, क्योंकि ये कई सारिया एडवांटेज जी सूँ देंगे, जिमें सिक्योरिटी जी ये वधिया, फ्लैक्सीबिलिटी है पेमेंट के, कॉस्ट घट आ, ऑनलाइन पेमेंट जी असी कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी इंफॉर्मेशन सिंक करती है, सारिया इंफॉर्मेशन जी सिंक होंदियां, मिनीमम डिस्क्रिपेंसीज यानी बहुत घट जी प्रॉब्लम जी तुहानूं फेस करनी पैंदियां। सो ये सारिया फैसिलिटीज़ जिहड़ियां ये ई बैंकिंग के जरिए जिहड़ियां तुहानूं प्रोवाइड कीतियां जांदियां, ते तुसीं जदों अपने नोट्स तैयार करोगे तो नोट्स तैयार करने के लिए तुसीं ये डायग्राम जिहड़ा जरूर बनाओ, ताकि ये डायग्राम के जरिए जिहड़ा तुहाडा क्वेश्चन जिहड़ा बहुत वधिया लगे। सो ये सी टॉपिक वेरीअस टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग सर्विसिस, यानी ई बैंकिंग किहड़े सर्विसिस जिहड़ियां प्रोवाइड करती है। जेकर ये वीडियो चंगी लगी तो इन्हूं लाइक तो शेयर जरूर करियो, कॉमेंट सैक्शन के मैनूं जरूर दस्सिओ कि जे कोई कमी पेशी है तो मिलते हैं अगली वीडियो के।